Good morning, students. Welcome on the YouTube channel of Government College Jhadol. And today in this lecture we will read about Jane Austen. And Jane Austen was a novelist, and she has written many novels. And today we are reading Jane Austen because a novel written by Jane Austen is prescribed in our syllabus. So here we are at the need to know a little background of Jane Austen and his works. इसका जो वर्क है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि 1813 में पब्लिश किया गया था, वो हमारे सिलेबस में लिखा गया है. अपने सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है. जॉन ऑस्टिन वाज बोर्न इन 1775, हैम्पशायर इंग्लैंड में ये पैदा हुई थी, एंड डाइड इन 1817, विंचेस्टर हैम्पशायर इंग्लैंड में ये मर गई थी. जेन ऑस्टिन के जो नॉवेल्स थे उस समय लिखे गए जब वुमेंस की राइटिंग को बहुत इन्फीरियर माना जाता था, या फिर वुमेंस की जो वर्क्स थे उनको पब्लिश नहीं किया जाता था. पब्लिशर्स जो थे वो उनको रिजेक्ट कर देते थे, या फिर वो समझते थे कि वुमेन के द्वारा लिखा गया कोई भी लिटरेचर या फिर कोई भी वर्क है वो इन्फीरियर कैटेगरी का होगा, उसमें वो मैच्योरिटी नहीं पाई जाएगी या फिर वो नहीं देखने को मिलेगी. इसलिए इसके जो अधिकांश नॉवल हैं वो इसके नाम के बिना ही, मतलब बेनाम ही या फिर इनाम ही छापे गए थे या फिर पब्लिश करवाए गए थे. ठीक है. Among them there is Sense and Sensibility, that was her first novel, that was published in 1811. Then there is Pride and Prejudice, that was published in 1813. Then there is a novel that was published in 1814, that is Mansfield Park. And then Emma, that was published in 1815. And in 1817 Jane Austen died, and there were three completed novels that were published after her death. Posthumously, publications are Northanger Abbey, that was published in 1818. Then there is also a novel that was published in 1818, is Persuasion. Then there is Lady Susan, that was published in 1871. Okay, so here most of the novels written by her are considered sentimental novels, okay, or novels of sensibility. Okay, so in her plots we find that these are fundamentally comic and highlight the dependence of women. उन्होंने उसके जो novels हैं उसमें women की जो मतलब आदमी पे निर्भरता के बारे में उसने बात करी है. She highlighted the dependence of women on marriage to secure social and economic standing, or social and economic security. Her most of novels are sentimental novels. The sentimental novels are considered the novel. The novels. These are considered sentimental. These were part of a genre that was celebrated the emotion and intellectual concept of sentiments, and it was a genre that occurred in the 18th century. The sentimental novels relied on emotional response both from the readers and characters. ये जो sentimental जो novels हैं वो emotion पे ज़्यादा जोर देते हैं, मतलब कि रीडर को थोड़ा emotional बनाने की कोशिश की जाती है, और राइटर है वो करेक्टर या फिर जिनके बारे में कहानी कही जा रही है उनके जो इमोशन हैं उनको रीडर पे हावी करने की कोशिश करता है. They feature sense of distress and tenderness, and the plot is arranged to advance both emotions and actions. This ability to display feeling was taught to show character and experiences, and to shape social life and relations. Okay, so ये जो बेसिक थिंग इसके बारे में ये है कि सेंटिमेंटलिटी इज द राइटर टेलिंग यू व्हाट
और what the writer what the characters are feeling, उनके emotions क्या हैं, उनकी feelings क्या हैं, and often by informing you that what the hero and heroine feelings, हमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये हमें नहीं बताया जाता है, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है उसके दिमाग में, उसके फीलिंग्स क्या है, बेसिकली इनको इमोशनल बनाने की कोशिश करी जाती है। इसकी इन नॉवेल्स में जो करेक्टर होते हैं अधिकांश वो रेशनल ना होके इमोशनल होते हैं, और राइटर भी उनके इमोशन में इंक्लूड हो जाता है। मतलब राइटर भी जैसे जिस तरह से ये करेक्टर इमोशनल होते हैं उस तरह से खुद इमोशनल हो जाता है, और इसके साथ साथ वो रीडर को भी इमोशनल करने की कोशिश करता है। तो ये एक तरह की टेक्निक है नोवेल राइटिंग की, दैट वाज फेमस इन 18th सेंचुरी। तो हम कुछ देखते हैं, कुछ फेमस सेंटिमेंटल नोवेल्स हैं वो देखते हैं। वो है सैमुअल रिचर्डसन्स फामेला और वर्चू रिवार्ड, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1740। ओलिवर गोल्डस्मिथ का वाइसर ऑफ वेकरफील्ड, लॉरेंस स्टर्न का ट्रिस्टम सैंडी, एंड हेनरी ब्रुक का है फुल ऑफ क्वालिटी, हेनरी मैकेंजे का है मैन ऑफ फीलिंग, एंड उसके बाद में बहुत सारे जो राइटर्स थे जिनमें हम शामिल करते हैं अपनी जॉन ऑस्टिन को, चार्लोट ब्रोंटे को, एंड जॉर्ज इलियट को। तो ये जो राइटर्स थे जिनमें सैमुअल रिचर्डसन है, ओलिवर गोल्डस्मिथ है, लॉरेंस स्टर्न है, हेनरी ब्रुक है, हेनरी मैकेंजे है, और ये अपनी जेन ऑस्टिन है, ये राइटर थे। इन्होंने अपने जो मोस्ट ऑफ जो नॉवल लिखे थे उनमें उन्होंने इमोशन पे ज़्यादा जोर देने की कोशिश करी है। तो ये जो नॉवेल्स हैं, ये पर्टिकुलर नॉवल हैं वो सेंटिमेंटल नॉवेल्स या फिर एक सेंटिमेंटल जोनरा के नॉवेल्स माने जाते हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा सा बैकग्राउंड था सेंटिमेंटल नॉवेल्स के बारे में, जॉन ऑस्टिन के बारे में और उसके वर्क्स के बारे में। बाकी प्राइड एंड प्रेजुडिस जो नोवेल है उसका हम पढ़ेंगे इस तरह से कि मैं आपको वीडियो में एक ब्रीफ समरी बता दूंगा। इसके साथ फिर मैं क्या करूंगा कि इसकी जो डिटेल समरी है या फिर इसके जो अदर कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको PDF के द्वारा व्हाट्सएप पे उपलब्ध करवा दूंगा। तो आने वाले लेक्चर में हम प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में कुछ चीज़ें कोशिश करेंगे जिनमें हम थीम के बारे में बात कर सकते हैं, इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर कॉन्टेम्प्रेरी सिचुएशन या फिर कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में हम बात कर सकते हैं, या फिर एक महत्वपूर्ण कंसर्न जो रहेगा वो ये भी हो सकता है कि हम पढ़ेंगे तो हम पता लगाएंगे कि इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो थीम्स वगैरह इसका सेंट्रल आइडिया है वो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।